Very warm welcome to today's session. So today we are going to do audit. Audit में what we have planned today is we will start with chapter 6 and chapter 9 to 13, but this is the exclusive portion जो अपना audit में बाकी रहता है, क्योंकि ऐसे सारा जो घर में दे दिया गया है उसमें ये सारा chapters cover हो जाएगा, ठीक है? और ऐसे सॉरी चैप्टर 11 भी कवर हो जा रहा है, कोई बोला, और जो 9 10 तो हो गया, 12 13 9 12 and 13 and 6 we need to do through live online classes. And alongside we will straight away start today's class with a few portions which are not there in essay का class. essay का class जो लोग कर लिए हो उन लोग को पता होगा कि essay 200 का end portion, essay 200 from audit risk is left, and essay 210 terms of audit engagement is also initial portion is missing. So in the videos which I have given to you, two things are missing. One is essay 200 का end portion, essay 210 का starting portion. तो वो एक class ही था, वो शायद class misplaced हो गया है. You know how things happen there. So the idea is I will give you live session. Don't worry, and we will record it. And today we are going to do just that. Okay. So let us begin with essay 200. I will first revise essay 200 till the portion I have done in the video given to you, and then we will start with essay 200 का जो portion हुआ नहीं. Okay, let us start. Let us begin. Okay, sir. Sir, essay 200 में क्या पढ़ाए थे? I had given you the PPT. All of you have it. Okay. So this is the big name of essay 200. Essay 200 का name is, as you can see, overall objectives. In short, we call it overall objectives. But if you talk about, the full name is as displayed on the screen. As you can see, overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with standards of auditing. So overall objective of an auditor should be the first essay technically, and it is. मैं ऐसे का क्लास कराते वक्त बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लास में भी ऐसे का नॉर्म बताते वक्त मैं बोला था ये ऐसे का नंबर 200 से क्यों शुरू हो रहा है. मैं उसका रीजन बताया था. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो है, ISA, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो है, उसमें भी जो एसेस इंडिया में अभी बन रहा है वो सारा एसेस का नाम एंड नंबर सेम करने के लिए जाके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ एक सिंक रहे, उस वजह से ये लोग क्या किया, सारा नाम नंबर एक रखने का चक्कर में ऐसे 200 से ही शुरू किया. इंटरनेशनली ऐसा ही कोडेड है. ओके सर, so what was this essay all about? Let us quickly go through, because अपने जो किए थे वो अपने क्लास में आधा कर लिए थे. तो जो पोर्शन क्लास में रिकॉर्डेड क्लास में मिल गया था वो पोर्शन we will not learn, but we will just recap. Okay, and the portion which is exclusively remaining untouched in essay 200 we will finish that. Okay, that is completeness. Okay, now what was overall objectives of an auditor without seeing this slide देखने का दरकार नहीं है. हर चीज में अपना दिमाग से भी अपने सोच के बता सकते हैं, right? So let me know what is the objective of an auditor and an audit. The first objective of an auditor is to give opinion on the financial statement. That is his biggest function, biggest task, and the most basic task you can say, and the ultimate task also. An auditor is usually appointed by the shareholders of a company, and they are supposed to report to the shareholders, and in their report they are supposed to give an opinion on the financial statements which they are auditing. And ये opinion ऐसा होता है कि the financial statements are free from material misstatements and they are showing true and fair view. ये opinion देने के लिए auditor क्या करता है? Audit करता है साल
साल भर का अकाउंट्स ऑडिट करता है, और साल भर का अकाउंट्स ऑडिट करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंट हुआ है बाय द मैनेजमेंट, उसको ऑडिटरी सर्टिफाई नहीं करता है, बट ऑडिटर उस पर ओपिनियन देता है कि हाँ चलो लगभग ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है 80% एंड अबव। एंड यही चीज देखो स्लाइड में अभी मिलेगा। एकदम आसान तरीके से ऑडिट को समझिए, ऑडिट एकदम आसान है, बातचीत करेंगे तो ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, अभी तो टेक्निकल टर्म भी अच्छा लग रहा है, हाँ यही उसका ऑब्जेक्टिव है। वेदर एफएस आर फ्री फ्रॉम एमएम, वेदर एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, and their objective is to express an opinion। तो obtain reasonable assurance करने के बाद ही तो express कर पाएगा, इसीलिए पहले obtain reasonable assurance and after obtaining reasonable assurance giving the opinion। if the reasonable assurance is not obtained, then the opinion will be of that sort, ऐसे 700 जो कर लिए ऑडिट रिपोर्ट में। okay, and express an opinion whether FS are prepared in all material respects in accordance with applicable financial reporting framework, okay, and report on the FS and communicate as required by SAs in accordance with the auditor's findings। okay sir, क्या देगा when reasonable assurance, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि reasonable assurance उसको नहीं मिला, when reasonable assurance cannot be obtained, तो हम लोग क्या देते हैं, एक गंदा ओपिनियन देते हैं, एक गंदा ओपिनियन देता है। तो ऑडिट ओपिनियन could be of two types, unqualified, which is good, and qualified। now qualified opinion जो है वो 3 तरह का होता है, क्वालिफाइड ओपिनियन वापस 3 तरह का हो सकता है। हाँ सर, हाँ, क्वालिफाइड ओपिनियन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। number one is qualified opinion itself। सर इसको क्वालिफाइड ना बोल के मॉडिफाइड बोलिए तो और अच्छा लगेगा। हाँ मॉडिफाइड, ठीक है। एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। सो सर ये ऑडिट ओपिनियन का कोई ऐसे है, हाँ अपने पढ़ेंगे 700 सीरीज में सारा वो सब लिखा है, 700, 701, 705, 706, 710, 700 सीरीज का सारा ऐसे आपको दिया हुआ है घर में देखने के लिए, मतलब सारा क्लासेस होगा, तो जो लोग कर लिए उन लोग को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये 3 तरह का ऑडिट ओपिनियन है जो कि गंदा है, जो कि नॉट गुड है। मॉडिफाइड मींस नॉट गुड, ओके। this is mildly bad, qualified means mildly bad, adverse means very bad, and disclaimer means auditor doesn't have any evidence or supporting to keep an opinion। तो ऑडिटर वहां पे हाथ उठा के बोल रहे हैं आई सरेंडर, आई एम डिस्क्लेमिंग माई ओपिनियन, मतलब मेरा ओपिनियन में मत जाओ बिकॉज मेरा ओपिनियन इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बिकॉज आई couldn't collect sufficient appropriate audit evidence which is required to back my opinion, which is required to make it objective। ओके, सो यहाँ पे वही बोला है, देखो स्लाइड में, रीजनेबल एश्योरेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एंड अ क्वालिफाइड ओपिनियन इज इनसफिशिएंट। क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब माइल्डली बैड ओपिनियन भी नहीं दे पाओगे। ऑडिटर क्या करेगा, डिस्क्लेम कर देगा या फिर विथड्रॉ फ्रॉम एन एंगेजमेंट कर देगा। जहां पे ऑडिटर को शक हुआ कि क्वालिफाइड ओपिनियन भी गलत हो जाएगा, ये तो बहुत ही बड़ा गहरा चीज है, जहां पे मेरे को सबूत नहीं मिला, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिल रहा है, वहां पे वो क्या करेगा, डिस्क्लेमर ऑफ एन opinion दे देगा। he will disclaim from giving opinion, he will refrain from giving opinion, and if possible he will release or withdraw from the engagement, but withdrawal जहां पे legally permitted नहीं है वहां पे उसको disclaimer ही देना पड़ेगा। लैंग्वेज क्लियर है सबको लैंग्वेज क्लियर है? okay, so this is the funda of what is the first type, talking about the overall objective of audit। okay, so this is the funda। okay sir, अब ध्यान से सुनना, next slide, let us go on to the next slide।
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मैं ये क्लास लिया था, वीडियो में आप लोग देख लिए, मैं वापस डेप्थ में नहीं बोलूंगा, बट डेप्थ में वीडियो में बोला गया था। फेयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में अपने दो फ्रेमवर्क देखते हैं, एक है कंप्लायंस और एक है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। मैं बोला था, मैं एग्जांपल यही लिया था क्लास में, बिकॉज यही सबसे बेहतर एग्जांपल है कि आज अगर आप अकाउंट्स करते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ अधेयर करना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते वक्त अधेयर करना, अधेरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इट्स अ पार्ट ऑफ व्हिच फ्रेमवर्क, कंप्लायंस और फेयर प्रेजेंटेशन? फेयर प्रेजेंटेशन. To present fairly, we need the help of accounting standards. That's why accounting standards are not mandatory, but they're not also optional. They are basically advisable, and they are at the option of the management. कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करोगे, ये ऑप्शन ऑफ द मैनेजमेंट है, केस टू केस वैरी करता है. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट ये जितना भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, खास करके गाइडेंस नोट में तो बोल ही दिया गाइडेंस है वो, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडेंस मान के अकाउंट्स करना, ये मैनेजमेंट के ऊपर है कौन सा वो लोग अप्लाई करेगा, अकाउंटिंग पॉलिसी हो. ठीक है, तो ये जो है ये किस लिए फ्रेमवर्क बनाया गया है, जाके प्रेजेंट फेयरली हो. सो ऐसा चीज को बोला जाता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क. सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो फ्रेमवर्क है, इसमें दो तरह का फ्रेमवर्क है. एक है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क टू व्हाट, टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन. ठीक है, और मैनेजमेंट अपना assumption से, अपना ओपिनियन से, अपना हंस से खुद चूज करेगा अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, एंड दूसरा तरह का फ्रेमवर्क था कंप्लायंस फ्रेमवर्क, जो वो चाहे ना चाहे उसको मानना पड़ेगा. मेरे को बोलो पीएल बैलेंस शीट कोई भी कंपनी का फॉर्मेट या मैनेजमेंट अपने से बनाएगा या शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट से बनाएगा? शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट को मान के बनाएगा, बिकॉज देयर adherence is a strict, yes, okay, now strict adherence, no departure possible. This was compliance and financial report fair presentation framework. ठीक है, तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क देखना भी ऑडिटर का एक काम है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है. फिर बोला कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में बिफोर एक्सेप्टिंग एन ऑडिट what are the preconditions in regard to responsibility of the management or those charged with governance, TCWG. बोला गया था कि बिफोर, मैं ऑडिटर हूं, मेरे को एक क्लाइंट फोन किया, मेरा क्लाइंट मेरे से कह रहा है कि आप क्या, ये क्लाइंट नहीं हुआ, क्लाइंट होने वाला है, एक इंक्वायरी आया फोन में कि आप क्या हम लोग का कंपनी का ऑडिटर बन पाओगे और बनना चाहोगे? तो मैं क्या तुरंत हाँ बोल दूंगा, या मैं सोच समझ के, मेरे को बोलना पड़ेगा, सोच समझ के बोलना पड़ेगा, बहुत चीज देखना पड़ेगा. पहला देखना पड़ेगा कि हम लोग का फर्म का कैपेसिटी है कि नहीं इस क्लाइंट को लेने के लिए. सीलिंग लिमिट, डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर, ओके, सेक्शन 141 सब सेक्शन 3. ओके सर दूसरा क्या क्या देखना पड़ेगा? बहुत चीज देखना पड़ेगा. इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस देखना पड़ेगा. सेक्शन 141 का डिस्क्वालिफिकेशन का सारा चीजें देखना पड़ेगा इनफैक्ट. ठीक है, एंड देखने के बाद मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या देखूंगा? अच्छा, मैनेजमेंट मेरे को बोल दिया आप ही अकाउंट्स बना लेना, आप ही ऑडिट करके करा देना. सब होता है रियल लाइफ में, ये भी होता है. छोटा मोटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑडिटर से ही सारा चीज करा लेता है. सर ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो, हाँ कोई डर नहीं, होता है, ओपन सीक्रेट है, कोई कमिटी मेंबर डिनाई नहीं कर पाएगा, डिनाई करे तो करे. ठीक है, तो द आइडिया इज, छोटा मोटा कंपनी का बहुत सारा सीए फर्म ऐसा मैल प्रैक्टिस करता है कि क्या करता है वो लोग खुद ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के खुद ही चेक कर लेता है. हाँ सर, हाँ बिल्कुल, ठीक है, पता नहीं चलता है किसको. बट द फंडा इज देयर इज strict non-adherence to section 144. क्या था? लिस्ट ऑफ नेगेटिव सर्विसेज पढ़ो, सॉरी याद करो,
हम लोग पढ़े थे क्लास में, यही लाइव ऑनलाइन क्लास में पहला ही तो था बुक कीपिंग, ठीक है। तो अपने वो नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, बट होता है, हाँ बिल्कुल होता है। अच्छा सर, तो मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए? ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस, नॉट द ऑडिटर। अब मैनेजमेंट ये किससे कराए वो उसका ऊपर है, उस ऑडिटर से नहीं कराना चाहिए, ठीक है। कोई और सीए से करा सकता है, कोई अकाउंटेंट रख के कर सकता है, खुद कर सकता है, खुद को नॉलेज है तो, ठीक है। अच्छा सर, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ, दिस इज responsibility number 1 of the management. Second responsibility, which is a precondition before accepting of an audit between management and auditor, is DIC of IC. क्या था? डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन, एंड ये M होगा, C नहीं। मेंटेनेंस, डिम ऑफ आईसी होगा, मेंटेनेंस ये ठीक कर लेना। डिम ऑफ आईसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना एंड मेंटेन करना भी काम होगा ऑडिटर का, नहीं मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का ऑडिटर विल वेट एंड चेक एंड कमेंट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द आईसी, इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। ओके सर। सर और तीसरा, तीन रेस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट का, भी दिमाग में पूरा बैठ जाना चाहिए ये सारा। क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? तीसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर को एट ऑल टाइम्स वो प्रोवाइड करेगा। सर क्या प्रोवाइड करेगा? इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन। नहीं तो ऑडिटर ऑडिट एविडेंस ढूंढेगा कैसे, और ऑडिट प्रोसीजर्स कंप्लाई कैसे करेगा, और ऑडिट ओपिनियन कैसे फॉर्म करेगा? इसीलिए ये और एक प्री कंडीशन है। प्री कंडीशन मींस दिस इज डीम्ड एंड दिस मस्ट बी देयर एज अ पार्ट ऑफ द चुक्ति। सर चुक्ति क्या होता है? बंगाली में बोलते हैं चुक्ति, MOU बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट, ऑडिट। ओके, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दोज विद इन द एंटिटी। मतलब तुम्हारा कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तुम बोल रहे हो नहीं ये इस एम्प्लॉय से मिल नहीं पाओगे, नहीं होगा। सबसे मिलने का हक ऑडिटर को देना पड़ेगा। ओके, ऑल राइट सर। सर यहाँ से चालू होगा अपना, हाँ यहाँ से चालू होगा आज का क्लास। सर आज का क्लास चालू हो गया था, हाँ मतलब फ्रेश टॉपिक यहाँ से चालू होगा, क्योंकि इसके पहले तक अपने कर लिए थे। ओके सर। सर अभी बताइए ऑडिट रिस्क, ऐसे 200 ऑडिट रिस्क। ओके सर, ऑडिट रिस्क का तो अलग वो भी है, हाँ बिल्कुल है, बट अभी के लिए अपने ऑडिट रिस्क क्या क्या हो सकता है वो एक बार समझते हैं, एक बार छोटा करके समझते हैं। अच्छा बोलो, ऑडिट रिस्क ना देखेंगे बाद में, पहले सोचेंगे, दिमाग में सब कुछ रहता है अपना, हम सबका। लेट मी नो व्हाट इज एन ऑडिट रिस्क विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन। कैन आई से ऑडिटर गलत ओपिनियन दे देगा, यही सबसे बड़ा ऑडिट रिस्क है। ऑडिट रिस्क क्या होता है? मैं गलत ओपिनियन दे दिया, मेरा काम है ओपिनियन देना, तो गलत ओपिनियन देना इज रिस्क। यस, सो ऑडिटर का काम है ऑडिट करना, ऑडिट करने का मतलब है ओपिनियन देना। ओपिनियन देना अगर गलत हो गया ओपिनियन देने में, तो ये रिस्क है। हाँ बिल्कुल रिस्क है सर, इट्स रिस्की। और गलत ओपिनियन दो तरह से दे सकते हैं, दो तरह से देख सकते हैं। अगर मैं ओपिनियन दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बट एक्चुअली मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो ये एक गलती है। दूसरा गलती क्या है? दूसरा गलती हो गया कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोला, बट एक्चुअली इट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये भी गलती हो सकता है। हाँ सर, तो रिस्क दो तरह का हो सकता है, मतलब रिस्क तो एक ही है, ओपिनियन गलत देना, और ये दोनों, ये रिस्क मैनिफेस्ट हो सकता है दो तरह से। समझ में आया मेरा बात? एकदम आसान है। ऑडिट का क्या रिस्क है? ऑडिट करके मैं गलत ओपिनियन दे दिया, बिकॉज ऑडिट का मतलब ही होता है गलती, सॉरी ओपिनियन देना। ओपिनियन अगर गलती से मैं दे देता हूं, दैट्स अ रिस्क मटेरियलाइजिंग, and that risk can materialize in two ways. If I have given a
unqualified, unmodified opinion, clean report, then I have said that ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. आई हैव सेड दैट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बट एक्चुअली ये फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट है नहीं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री नहीं है. तो ये मेरा रिस्क है. अच्छा सर, और दूसरा कैसे हो सकता है मैनिफेस्ट ये रिस्क, कि मैं बोल दिया, क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया या डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन दे दिया, हालांकि मेरे को देना नहीं चाहिए था. ये भी गलती है और ये भी ऑडिट रिस्क है. अच्छा सर, एक बार पढ़ाइए, पढ़ो, एक बार खुद से पढ़ो. लैंग्वेज टेक्निकल वाला याद रखना, मैं बोल्ड कर दिया सारा टेक्निकल लैंग्वेज को. ठीक है. रिस्क दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन. रिस्क दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन. ठीक है ना. तो ओके, ऑल राइट सर. तो दिस इज द आइडिया. ओके सर, खाली एक चीज मेरे को बोलना है बीच में. मैं आज मेरा पर्सनल आईडी से जूम में लॉगिन किया, जिसमें प्रीमियम अपग्रेडेशन नहीं है. मेरा जो कोचिंग है फेस द बुक, उसमें प्रीमियम अपग्रेडेशन है. तो मेरे को अभी नोटिफिकेशन आया तब याद आया. ठीक है, 40 मिनट्स में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा. ये जूम का नॉर्मल अकाउंट है. तो मैं क्या करूंगा, मैं जब नया आईडी दूंगा, नया आईडी देना नहीं पड़ेगा, लॉ का जो लास्ट क्लास का आईडी था उसी से लॉगिन कर लेना, मैं शेयर कर दूंगा. ठीक है, वो एफटीबी का प्रीमियम अकाउंट है, उसमें और दिक्कत नहीं होगा. आई एम सॉरी, बिकॉज मेरे को अभी ख्याल आया, देखो शोमोदित्य दास मतलब वही मेरा पर्सनल अकाउंट से है ये. ठीक है, तो कोचिंग का अकाउंट से मैं जब लॉगिन करूंगा तब और दिक्कत नहीं होगा 40 मिनट वाला. तो जैसे ही ये सेशन एक्सपायर होगा, आप लोग से विनती कर रहा हूँ, थोड़ा सा वो आईडी मैं वापस शेयर कर दूंगा. वो आईडी, वो पुराना वाला आईडी से ही चलेगा, तो वो आईडी से वापस री लॉगिन कर लेना. ठीक है, आई शेयर इट वंस अगेन इन ऑडिट ग्रुप, डोंट वरी, लॉ वाला. ठीक है, थैंक यू. नाउ आई 7.5 minutes are left, don't worry. Okay, now सर बताइए कि ये क्या है, ये लैंग्वेज क्या है. लैंग्वेज बहुत आसान है. बोल रहे कि रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन. इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन का मतलब क्या है, गलत ओपिनियन दे दे, वही तो रिस्क है. व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, तो देखो ये नहीं बोल रहे कि रिस्क है नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड, मटेरियली मिसस्टेटेड बोल दिया, ये रिस्क कम ही होता है. बट रिस्क क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है बट तुम गलत बोल दिया, वो रिस्क ज्यादा है. ठीक है, अगर पीएनबी का ऑडिटर पीएनबी सुने हो ना, पीएनबी जो स्कैम में, नीरव मोदी वाला स्कैम में, गीतांजलि, नीरव मोदी वाला स्कैम में जो पंजाब नेशनल बैंक का जो हुआ था, वो यही हुआ था कि दे गेव एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, ऑफ कोर्स, बिकॉज देयर वाज मटेरियल मिस्टेक. बड़ा बड़ा फ्रॉड में यही होता है. ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ दो चीज. ऑडिट रिस्क का दो मेन कंपोनेंट्स है. ऑडिट रिस्क का दो मेन कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट्स ऑफ एआर. नंबर वन is ROMM, risk of material misstatement, and number 2 is detection risk. ये जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ये तो समझ में आ गया सर कि इसमें दो चीज रहता है. एक इनहेरेंट रिस्क रहता है जो कभी भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और एक कंट्रोल रिस्क रहता है. सो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगेन हैज टू पार्ट्स. वन इज inherent risk and a control risk. Now let me tell you, ये जो inherent risk है,
it cannot be negated. cannot be negated. इनहेरेंट रिस्क मतलब अंदर का रिस्क जो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कोई भी उसका काउंटर या कंट्रोल है ही नहीं। कंट्रोल रिस्क में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बट तुम मैनेजमेंट को बोल पाओगे कि आपका इंटरनल कंट्रोल अगर जबरदस्त होगा तो ये रिस्क मटेरियलाइज नहीं करेगा। तो कंट्रोल रिस्क कैन बी निगेटेड बाय द मैनेजमेंट, कैन बी निगेटेड बाय द मैनेजमेंट। और लास्टली डिटेक्शन रिस्क क्या है? डिटेक्शन रिस्क इज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स गोइंग अनडिटेक्टेड। मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स अनडिटेक्टेड चला गया, ये कैसे आ रहा है? ये सैंपलिंग की तरह, मैं अगर सैंपल साइज बहुत कम लिया और वही सैंपल पे बेस करके पूरा पॉपुलेशन को ओपिनियन दिया तो बाकी अनडिटेक्टेड रह गया। तो डिटेक्शन रिस्क वैसा है। डिटेक्शन रिस्क क्या निगेट किया जा सकता है? बिल्कुल। मैं अगर बहुत अच्छे से पॉपुलेशन ऑफ सैंपल को बढ़ा दूं, पॉपुलेशन ऑफ सैंपल को इतना बढ़ा दूं, सैंपल इतना ज्यादा ले लूं कि 100% ऑडिट कर लिया, हो नहीं सकता है, संभव नहीं है। पहला साल ऑफ ऑपरेशंस में हो सकता है, छोटा कंपनी में हो सकता है, बट बड़ा कंपनी में ये संभव नहीं है। तो ये भी कुछ हद तक प्रैक्टिकली डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस। ठीक है, सो दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क कितना तरह का होता है मैं थोड़ा बताया अभी। लेट्स गो बैक टू द स्लाइड, सॉरी, लेट्स गो बैक टू द स्लाइड एंड सी कि अपने कितना तरह का अपने देख रहे। तो देखो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मैं कर दिया, बाइफरकेशन इसलिए वापस ड्राइंग नहीं किया, मैं एक्सेल में लिख दिया था। देखो वही चीज बोला है। तुम लोग अगर चाहते हो कॉपी में ये चार्ट कॉपी कर सकते हो, और ये चार्ट कॉपी करने के नीचे इनहेरेंट रिस्क के नीचे लिख सकते हो कि कैन नॉट बी निगेटेड बाय एनीवन। इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या है? ये अंदर का रिस्क है, अंदर का रिस्क कोई नहीं संभाल पाएगा, कोई नहीं संभाल पाएगा। कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा बहुत संभाल पाएगा, डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर खुद संभाल पाएगा। हिंदी में लिख सकते हो तो याद रहेगा, बंगाली, हिंदी, जो भी लैंग्वेज यूज करना है। ठीक है, तो लिख सकते हो इसके नीचे, बिकॉज लाइक दिस। सर इनहेरेंट रिस्क का एक एग्जांपल दीजिए। बिल्कुल दूंगा। इनहेरेंट रिस्क का एग्जांपल हो गया, मैं ये रीजनेबल एश्योरेंस देते वक्त बोला था, मेरे को बताओ आज अगर हम लोग बात करें, आज अगर हम लोग बात करें, क्या चीज का बात करेंगे सर? ये आपका क्या नाम है? मैनेजमेंट का ड्यूटी है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करके प्रेजेंट करने का ड्यूटी है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त, मेरे को बताना, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त अकाउंटिंग एस्टिमेट्स प्रोविजन अकाउंट्स में रहता है? हाँ है, रहता है। और मैं बोला था इसी वजह से एब्सोल्यूट एश्योरेंस देना ऑडिटर का बस का बात नहीं है। तो एक रिस्क तो रह जाता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स आर ऑलवेज देयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज मटेरियली मिसस्टेटेड बिकॉज there will be provisions and estimates in accounts. Since provisions and estimates are there in accounts, it is beyond the scope of an auditor to give you absolute assurance. And that's why they settle down for reasonable assurance. The same risk, this is a risk, and this risk is known as inherent risk. This is inherent to the process of accounting. Example मिला और इत्रो, ठीक है? तो ये है इनहेरेंट रिस्क का एग्जांपल। तो लिख के रखो, मैं लिखा दे रहा हूँ सबको, अच्छे से डॉक्यूमेंटेड करके नोट्स बना के पढ़ने का जो मजा है वो मजा कहीं में नहीं है। ठीक है, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का दो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लो। इनहेरेंट रिस्क, अच्छा गाइस जस्ट अ नोटिफिकेशन, लेस देन 1 minute is left, तो क्यों रिस्क ले? आई एम स्टॉपिंग दिस 40 minutes here and then logging in from Facebook अकाउंट। ठीक है ना, ये 1 मिनट में अचानक चला जाएगा, लेस देन 1 minute दिखा रहा है। थैंक यू, लेट्स मीट ऑन द अदर साइड।